رکی اور رابن لیلسی کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک انہیں اپنی رہائش کے لیے کوئی مناسب گھر نہیں مل سکا تھا۔ جو مکان بھی ملتا وہ بس گزارے لائق ہی ہوتا۔ ان کی یہ تلاش ابھی تک جاری تھی۔ ایک دن دفتر سے گھر واپس جاتے ہوئے علاقہ کافی اچھا اور پرسکون تھا، ماحول بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اس مکان کو اندر سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک پرانا مکان تھا جس کو مرمت کی ضرورت تھی، لیکن رکی کو یہ ٹھیک ہی محسوس ہوا۔ وہ جلدی جلدی اپنے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں پہنچا اور یہ خوشخبری اپنی بیوی رابن لیلسی کو سنائی اور اسے ساتھ لے کر یہ مکان دکھانے لے گیا۔ رابن کو بھی یہ مکان بہت پسند آیا۔ یہ مرکزی سڑک سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹے سے محلے میں تھا۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رکی کا دفتر بھی یہاں سے قریب ہی تھا۔ ان کو یہ مکان مناسب قیمت پر مل گیا۔ گھر خریدنے کے بعد رکی نے اس کی مرمت کا کام شروع کیا، جبکہ رابن نے اندرونی سجاوٹ کا ذمہ لیا۔ صرف 1 ماہ بعد انہوں نے مکان کی موجودہ حالت بدل کر رکھ دی۔ بیرونی دیواروں پر سفید پینٹ ہو گیا، دروازوں پر نیا رنگ کر دیا گیا، فرنٹ پورچ کی چھت تبدیل ہو گئی، پودوں کی کاٹ چھانٹ کر دی گئی۔ اب یہ جگہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آخر کار ان کو اپنا گھر مل ہی گیا تھا۔ اس گھر میں پہلے چند سال سب ٹھیک رہا۔ پڑوسی کافی دوستانہ تھے۔ جب وہ اس گھر میں منتقل ہوئے تو پڑوسیوں نے ان کے اعزاز میں استقبالیہ دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر ایک دن سامنے والے صحن میں ایک کالا بلّا نظر آیا۔ اسے رکی نے وہاں سے بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر بلّا تو بالکل ہی ڈھیٹ نکلا۔ رکی کے چیخنے چلانے کے باوجود اس نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بالکل سیاہ رنگ کا پیلی آنکھوں والا ایک بڑا سا بلّا تھا جو صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا رکی کو گھور رہا تھا۔ اس وقت رکی پورچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بلے کو دیکھتے ہی رکی کو اپنے جسم میں ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ اس کے پورے جسم پر ایک خوفناک احساس چھاتا جا رہا تھا۔ اسے اس قسم کی بلیوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی اور وہ ان سے خوف محسوس کرتا تھا۔ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ اس قسم کی بلیاں چڑیلوں، جنوں اور بھوتوں وغیرہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر خدا ہی مالک ہے۔ رکی اس بلے کی یہاں موجودگی کی وجہ سے اپنی بیوی رابن کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، مگر وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خوفناک بلّا یہاں صرف اس وجہ سے ہے کہ رابن گھر کا کچرا، جس میں کھانے کی بچی ہوئی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، لاپرواہی سے گھر کے سامنے والے حصے میں پھینک دیتی ہے۔ یقیناً یہ بلّا انہی چیزوں کو کھانے یہاں آتا ہوگا، اور پھر جب بلے نے دیکھا ہوگا کہ اس گھر کے سامنے بلا ناغہ کھانے پینے کو وافر مل جاتا ہے تو اس جگہ کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا ہوگا۔ یہ کالا بلّا بہت صحت مند اور مضبوط لگ رہا تھا، بہت موٹا تازہ تھا۔ رکی کو عادت تھی کہ جب فارغ ہوتا تو پورچ میں بیٹھ کر تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوتا رہتا۔ پڑوسیوں کو آتے جاتے دیکھ کر ان کی طرف ہاتھ ہلا دیتا۔ سامنے باغیچے میں لگے نیم کے اس درخت کی بدولت ہوا بہت تازہ اور ٹھنڈی ہوتی، موسم بہت اچھا ہو جاتا۔ سردیاں تھوڑی سخت ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی وہ یہاں بیٹھ کر بچوں کو بارش اور برف میں کھیلتے دیکھنے سے باز نہیں آتا تھا۔ گھر کے سامنے سے گزرنے والی سڑک تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب مڑ جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک ڈھلان کی شکل میں نیچے درختوں کے ذخیرے سے گزرتی ہوئی آگے چلی جاتی تھی۔ جب بھی رکی اپنے سگار سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر آتا، کالا موٹا بلّا درخت کے نیچے بیٹھ کر اسے اپنی پیلی آنکھوں سے گھورتا رہتا۔ اسے دیکھ کر رکی کا دل دھڑکنے لگتا۔ کئی دفعہ اس نے اس کا ذکر اپنی بیوی رابن سے بھی کیا، مگر وہ اس کا مذاق اڑا دیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف ایک کالی بلی ہے جو کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رکی اس کو سمجھ بھی سکتا تھا، کیونکہ جب کبھی رابن اس کے ساتھ ہوتی، کالے بلے کے دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا۔ اس کا رویہ بڑا دوستانہ ہو جاتا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ آگے آ کر اس کی بیوی رابن کے پاؤں سے اپنے جسم کو سہلانے بھی لگتا۔ اس کا اظہار نرم اور پیار بھرا ہو جاتا، مگر رکی کو اس کی پیلی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ کرختگی ہی نظر آتی تھی۔ جلد ہی ان کے گھر بلیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پہلے صرف یہی کالا بلّا تھا، پھر ان کی تعداد 2 ہوئی،
फिर 3 हो गई, उसके बाद तो रिकी गिनती ही भूल गया। अब तो इतना फालतू खाना भी नहीं होता था कि उनको दे सके। उनके खाने के लिए खुराक और गोश्त वगैरह रॉबिन को खरीदना पड़ता था। रिकी इन अखराजात की वजह से परेशान नहीं था। उसकी परेशानी की वजह ये थी कि ये बिल्लियाँ नीम के दरख्त के नीचे अपनी अपनी जगह बैठकर उसे घूरती रहती थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसे उनसे अनजाना सा खतरा महसूस होने लगा। रिकी को यूं लगा जैसे वो इसे घूरते हुए इसकी मौत की साजिश कर रही हो। 10, 15, फिर 20। ऐसा लगता था जैसे हर रोज एक नई बिल्ली इनमें शामिल हो रही थी। उसमें हर तरह की बिल्लियां थी, हर रंग और कद की बिल्ली थी। यहाँ तक कि बिल्लियों के बच्चे भी मौजूद थे जो बज़ाहिर बहुत प्यारे नजर आते थे। वो भी दूसरे बिल्लियों के साथ बैठे रिकी की हरकत को देखते रहते। रिकी उनको देखकर झुंझला जाता। उसकी बीवी रॉबिन ने महसूस किया कि वो इनकी वजह से पागलपन की हद की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन सुबह रिकी बेदार हुआ तो अपने मामूल के मुताबिक अंगड़ाई लेता हुआ पोर्च में निकल आया। आंखें मलते हुए जब उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसके पांव के नीचे एक छोटी सी खिलौना कार आ गई। संभलने की कोशिश में वो बुरी तरह गिर पड़ा। उसके बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कई दिन तक रिकी को बाजू पर प्लास्टर लगाकर फिरना पड़ा। रॉबिन का ख्याल था कि पड़ोसी के किसी बच्चे ने कार वहां छोड़ दी होगी, मगर रिकी का इसरार था कि ये इन्हीं मनहूस बिल्लियों की कारस्तानी है जो सुबह शाम नीम के दरख्त के नीचे बैठी रिकी को घूरती रहती हैं। इस वाक़े के बाद रिकी ने इन मनहूस बिल्लियों से छुटकारा पाने का पक्का फैसला कर लिया। उसने इरादा किया कि इन बिल्लियों को पकड़कर कहीं दूर जंगल में छोड़ आए। इस गर्ज से उसने अपने घर के सहन में कई फंदे लगाए, मगर बिल्लियां उसकी तवक्का से ज्यादा होशियार निकली। एक भी उसके जाल में न फंस सकी। इसके बाद रिकी ने एक और मंसूबा सोचा। उसने फैसला किया कि बिल्लियों के खाने में जहर मिलाकर इन सबको मार दिया जाए। इसी तरह इनसे जान छूटेगी। उसने जहर का बंदोबस्त भी कर लिया। उसकी बीवी रॉबिन जब उन्हें खाना डालने के बाद घर के अंदर जाती तो रिकी फुर्ती से उनके इस खाने में जहरीली दवाई शामिल कर देता। मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि पहले जिस खाने को बिल्लियां निहायत रग़बत से खाती, अब वो इस खाने को मुंह भी ना लगाती, बल्कि उसके बिल्कुल करीब भी ना जाती। चंद हफ्ते बाद सर्दी शदीद हो गई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। हर चीज़ जमने लगी। रॉबिन ने रात को सोने से पहले बिल्लियों के पानी पीने वाले प्याले में ताज़ा पानी भर दिया। अगली सुबह जब रिकी दफ्तर जाने के लिए घर से निकलने लगा तो दरवाजे के ऐन सामने बिल्लियों ने रात का रखा पानी गिरा दिया हुआ था, जो जमीन पर बर्फ की माने जम चुका था। रिकी का पांव उस पर पड़ा और वो फिसल कर गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूटते टूटते बची। यूं लगता था जैसे किसी ने प्याले का पानी जानबूझकर गिराया हो। रिकी ने इसका इल्जाम बड़े काले बिल्ले और बाकी बिल्लियों पर लगाया। रॉबिन, ये बिल्लियां मेरी जान लेकर छोड़ेंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो अपनी बीवी पर चिल्लाया। अरे तुम भी बिल्कुल पागल हो रिकी, तुम इन बिल्लियों के इतना खिलाफ क्यों हो? इतनी छोटी छोटी बिल्लियां तुम्हें कैसे मार सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा नोच ही तो सकती हैं ना, मगर वो तो ये भी नहीं करती। लगता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी ये बिल्लियां किन नजरों से मेरी तरफ देखती हैं। लगता है खा ही जाएंगी। रिकी चीख कर बोला। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके और उसकी बीवी रॉबिन के दरमियान मामलात पहले जैसे नहीं रहे। साफ पता चलता था कि वो सोच रही है कि रिकी पागल होता जा रहा है। रिकी समझता था कि बिल्लियों के मामले में रॉबिन हमेशा उसको गलत समझती है और उसका साथ नहीं देती। रिकी के जहन पर बिल्लियां कुछ इस तरह सवार होती जा रही थीं कि उसके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। जब रॉबिन ने उसकी बात ना सुनी तो एक दिन उसने अपने दिल का हाल अपने दफ्तर के साथी जिम से कह सुनाया। जिम उसकी सारी बात सुनकर कहने लगा, तुम उनसे जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यकीन करो जिम, मैंने बहुत कोशिश की है। जाल, जहर, सब कुछ आजमाया, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह करो, तुम जानवरों के सरकारी महकमे को इतला करो, वो इन बिल्लियों को पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा किया तो रॉबिन मुझे ऐसा ना हो घर से ही निकाल दे। उसे मुझसे ज्यादा उन बिल्लियों से उन्स हो गया है। वो उन बिल्लियों को मुझसे ज्यादा तवज्जो देती है। चंद दिन बाद रिकी दफ्तर से थका हारा घर वापस आया और मामूल से कुछ जल्दी सो गया।
रात को उसे सर्दी महसूस हुई तो आंख खुल गई। कांपता हुआ उठा तो देखा कि कमरे की खिड़की खुली रह गई थी। वो उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उतरा तो फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। फौरन ही म्याऊं की हल्की सी आवाज उभरी। गौर से देखा तो वाकई ये एक बिल्ली थी। वो खुली खिड़की से कमरे में घुस आई थी, मगर थोड़ी ही देर बाद रिकी को एहसास हुआ कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि वो सारी बिल्लियां मौजूद थीं जो नीम के दरख्त नीचे बैठी उसे घूरती रहती थी। जब उसने उनको डरा कर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने रिकी को पंजे मारना और नोचना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि ये बिल्लियां उसे काट रही हैं। उसने उन्हें उठा उठा कर कमरे से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थी। वो उसे काट रही थी, उसका गोश्त नोच रही थी। वो इनके खिलाफ पूरी मज़ाहमत कर रहा था, मगर बिल्लियां चारों तरफ से उस पर झपट रही थी। उसके पूरे जिस्म से खून बहना शुरू हो चुका था। उसे यूं लगा जैसे वो मर रहा है। उसका सर चकरा रहा था, पूरा कमरा घूमता महसूस होने लगा था। वो चीखना चाह रहा था मगर आवाज़ हलक में घुट कर रह गई थी। वो गिरने ही वाला था कि कहीं दूर किसी चीज की आवाज उभरना शुरू हुई। यूं लगा जैसे कहीं अलार्म बज रहा हो। फिर एकदम रिकी की आंख खुल गई। इस सर्द मौसम में भी उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। बेदार होते ही उसने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखा। जब कहीं कोई बिल्ली नजर न आई तो सुकून की एक गहरी सांस ली और फिर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा अलार्म बंद कर दिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि यह महज एक ख्वाब था, लेकिन यह बहुत हकीकी लग रहा था। जब रिकी ने रॉबिन को अपने इस ख्वाब के बारे में बताया तो वो अपने बुलंद आहंग कहके को रोक न सकी। रिकी मुंह बनाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। शावर लेते हुए भी वो इसी ख्वाब के मुतालिक सोचता रहा। अगले चंद हफ्तों तक बिल्लियों की तरफ से कोई खास वाकया रूनुमा ना हुआ। हर चीज़ मामूल के मुताबिक चलती रही, लेकिन अब रिकी महसूस कर रहा था कि बिल्लियों का रवैया उसके साथ कदरे मुख्तलिफ था। जब एक सुबह वो दफ्तर के लिए घर से निकला तो उस वक्त भी ढेरों बिल्लियां बाहर सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठी उसकी तरफ देख रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हों। उसने सोचा कि शायद वो इसके साथ किसी किस्म की जंगबंदी चाहती हैं। शायद अब वो इसे पसंद करने लगी हैं या कम से कम इसे बर्दाश्त कर रही हैं। यह महसूस करके वो खुश सा हो गया, क्योंकि बिल्लियों के साथ उसकी जंग कुछ इस तरह की बन गई थी जिसे जीतना अब उसे ख्वाब महसूस होता था। ये उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। उसने इसके बारे में मजीद नहीं सोचा, कार स्टार्ट की और बाहर सड़क पर निकल आया। कुछ आगे जाकर मोड़ के बाद सड़क की ढहलवान शुरू हो गई। रिकी ने कार की रफ्तार कम करने के लिए ब्रेक लगाई, मगर रफ्तार कम होने की बजाय ब्रेक का पैडल कार के फर्श पर जा लगा। ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया था। वो एकदम घबरा गया। सड़क की ढहलवान पर हर लम्हे कार की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। एक झटका लगा और उसका सर विंडशील्ड से टकराया। शीशे के टुकड़े उसके जिस्म को काटते हुए दूर तक चले गए। गाड़ी में हर तरफ खून बिखर गया। जब तेज रफ्तार कार एक दरख्त के साथ टकरा कर रुकी तो रिकी का बेजान जिस्म कार के दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। हादसे की तहकीकात से ये बात सामने आई कि रिकी की कार ब्रेक की तार टूटी हुई थी और यूं लग रहा था जैसे किसी चीज ने अपने दांतों से उस तार को चबाया था। इसलिए इसे हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी गई। रिकी की बीवी रॉबिन ने फर्ज शनासी के साथ अपने शोहर के मरने पर सोग मनाया, लेकिन उसके पास उसे तसल्ली देने के लिए बिल्लियां मौजूद थीं। इन जिनाती बिल्लियों ने रिकी की जान आखिरकार लेकर ही छोड़ी और उसकी बीवी रॉबिन को अपने ज़ेरे असर कर लिया। रॉबिन ने अपनी इन पुरअसरार जिन्नाती बिल्लियों के साथ इंश्योरेंस की उस रकम पर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी जो उसे रिकी की मौत के बाद मिली थी। अब वो अपनी इन पुरअसरार बिल्लियों के साथ बहुत खुश थी।